कैट एग्जाम क्रैक करने के बाद मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था इंटरव्यू क्रैक करना, क्योंकि आई नेवर अपियर्ड सच टाइप्स ऑफ इंटरव्यू इन माय लाइफ। एंड इसके अलावा मैं हमेशा सोचता था कि बाकी सारे जो कैंडिडेट है वो मेरे से बेटर होंगे। सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में आई विल टेल यू हाउ आई प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू एंड सिमिलरली यू कैन प्रिपेयर एंड यू नो क्रैक द आई एम इंटरव्यू. So if you feel that this video is helpful for you, then please subscribe the channel and hit the like button, and also you can share with your friend. So before moving ahead, let me tell you my academic profile, my overall CAT score and all the interview call that I had received. So coming to my academic profile, my 10th score is 65.4, but actually CAT में 63 point something count होता है, because you know CAT calculate average of all 6 subject. My 12th score is 66.4, my diploma score is 78.59 and my graduation score is 80 and I am mechanical engineer. Coming to my CAT score, so my overall CAT score is 96.22 with 99.48 in quant, and the call that I had received is from all new or baby IIMs except IIM Nagpur, and I had call from some of the IIT like IIT Kanpur, IIT Roorkee. I did not get call from IIT Delhi and IIT Madras, and I did not apply for IIT Bombay and IIT Kharagpur. So these are all calls that I had received. Now let me tell you how I prepare for the IIM interview. So I divided my interview preparation into 5 parts. So coming to part 1, so in part 1 I contain all the basic HR question that a interviewer could ask in MBA interview. Like, tell me about yourself, why MBA after engineering, your strength, your weakness, your short term goal, your long term goal, what motivates you to do work or something, whatever, and the gap year if you have. These are all basic HR questions that you must prepare for the MBA interview. And I would suggest to prepare a well structured answer of all these questions, and आप इसको repetitively आईने के सामने प्रैक्टिस करें, so that कि आप इंटरव्यू के टाइम फंबल ना हो. If you need any help to prepare for a particular question, do let me into the comment section. I will be more than happy to give my approach or give my answer of a particular question. Coming to part 2, so in part 2 I contain all general knowledge questions, static GK and current affairs like national news, international news, business news and geopolitical news. So what I did for the current affairs, so I used to follow only one strategy, that is read newspaper. So I used to read newspaper on daily basis and take notes of all important news that is going on, and form my opinion of a particular news, because there might be chances that interviewer could ask your opinion on a particular news. So उसके लिए भी मैं प्रिपेयर करता था कि लाइक फॉर एग्जांपल अभी का करंट ट्रेंडिंग न्यूज है वन नेशन वन इलेक्शन, सो उस पर आपका क्या ओपिनियन है. तो यू शुड फॉर्म अ वेल स्ट्रक्चर आंसर फॉर these types of question as well. Also next month annual budget आने वाला है, then you should read the annual budget thoroughly, and there is a standard question that interviewer generally asks, like what is your opinion on this budget, or what are the 5 key takeaway in this budget that that you most like, or what is the 5 things that you do not like in this budget. So prepare a well and structured answer for this question as well. मैंने भी खुद किया था, like generally मॉक्स इंटरव्यू में ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछते थे. So I hope करंट अफेयर्स का पार्ट आपका क्लियर हो गया. Coming to general knowledge and static GK question. So see, first things you have to understand, like this is not a UPSC interview. दिस इज़ अ नॉर्मल MBA इंटरव्यू. सो इंटरव्यूअर जो होते हैं वो बहुत डेप्थ में जनरल नॉलेज एंड स्टैटिक जीके क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट या देयर इज एक्सेप्शन एज वेल. फॉर एग्जांपल इन माय केस कैप इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि था कि वेस्ट बंगाल ईस्ट में है, तो इसका नाम ईस्ट बंगाल होना चाहिए, वाई वेस्ट बंगाल. सो आई वाजंट अवेयर अबाउट दिस फैक्ट. तो या देयर इज एक्सेप्शन कि आपसे इंटरव्यूअर कुछ डेप्थ में जनरल नॉलेज पूछ ले, बट या वो बहुत कम केसेस होते हैं. बट यार दे एक्सपेक्ट कि आपको बेसिक जनरल नॉलेज पता होनी चाहिए. सो मैंने क्या किया था जनरल नॉलेज प्रिपेयर करने के लिए. फर्स्ट थिंग्स, मैंने अपने स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट के बारे में रीड किया था अबाउट देयर करंट चैलेंजेस, देयर पॉलिटिकल डायनेमिक, देयर अपॉर्चुनिटी, एंड सम ऑफ द हिस्ट्री दैट बिलोंग्स टू माई स्टेट और माई डिस्ट्रिक्ट. फॉर एग्जाम्पल जो इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो मेरे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, तो मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूरा रीड किया था. इन एडिशन टू दिस आई प्रिपेयर लाइक हाउ मेनी स्टेट आर इंडिया, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी आर इन इंडिया, एंड
usually their names, and capital of all state in India, neighboring state name, coastal state name, and important minister name like home minister, vice president of India, governor of my state, finance minister, law minister, all the important minister name मैंने लर्न किया था। इसके अलावा आई रीड अबाउट इलेक्शन प्रोसेस, लाइक प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, MP का इलेक्शन कैसे होता है, MLA का इलेक्शन कैसे होता है, प्राइम मिनिस्टर कैसे सिलेक्ट होते हैं। सो बेसिकली जो इलेक्शन प्रोसेस होता है उसके बारे में मैं जस्ट एक बेसिक रीड किया था कि अगर मान लो इंटरव्यूअर ने पूछ लिया तो एक मुझे कुछ ना कुछ आंसर देना है, बिकॉज दिस इज द बेसिक क्वेश्चन जो कि MBA स्टूडेंट को पता होने चाहिए। दिस इज नॉट एग्जॉस्टेड लिस्ट, बट दिस इज द मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई प्रिपेयर फॉर जनरल नॉलेज एंड स्ट्रेटेजी। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कमिंग टू पार्ट 3, MBA स्पेशलाइजेशन क्वेश्चन, एंड आई फील दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्शन इन द इंटरव्यू प्रिपरेशन, बिकॉज यहाँ पे इंटरव्यूअर चेक करते हैं कि आप कितना इंक्लाइन हो MBA के साइड में, by asking a question कि like in which specialization are you going to do MBA। so for example आपने मार्केटिंग कहा, then they expect कि आपको बेसिक मार्केटिंग के बारे में पता होना चाहिए। so they will ask you like definition of marketing, definition of sales, difference between sales and marketing, 4P of marketing, what is advertisement, what is promotion। in my case मैं उस टाइम ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन में MBA करने के लिए इंक्लाइन था, तो मैंने ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसके लिए प्रिपेयर किया था। तो आप जिस स्पेशलाइजेशन में MBA करना चाहते हो उस स्पेशलाइजेशन का बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं आपको प्रिपेयर करना चाहिए। सो कमिंग टू पार्ट 4, एकेडमिक क्वेश्चन। सो इन एकेडमिक क्वेश्चन फर्स्ट थिंग्स आई प्रिपेयर अबाउट माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, देन मैंने 3 और 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पिक किए इन माय UG, एंड उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो बेसिक क्वेश्चन होता है उसके बारे में प्रिपेयर किया। लाइक मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, सो आई रीड अबाउट थर्मोडायनेमिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, फ्लूइड मैकेनिक्स। सो ये सारे जो 2 to 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, सो उसके बारे में पूरा रीड किया था। नॉट इन डेप्थ बट हाँ बेसिक चीज़ें मैं रीड किया था, बिकॉज यूजुअली इंटरव्यू में बेसिक ही क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। कमिंग टू लास्ट पार्ट, इट इज पार्ट 5, सो WOCX क्वेश्चन। सो इफ़ यू हैव WOCX, इन माई केस WOCX था बट मैं उसको MBA में शो नहीं किया, बिकॉज WOCX मेरा इंजीनियरिंग के पहले का था थोड़ा बहुत। तो अगर आपके पास WOCX है देन यू शुड प्रिपेयर अबाउट योर WOCX, लाइक अबाउट योर कंपनी, अबाउट द इंडस्ट्री आर यू वर्किंग इन, उसके करंट प्रॉब्लम्स क्या है, उसका इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या है, ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या है, ऑल द इशू दैट गोइंग्स ऑन दैट पार्टिकुलर इंडस्ट्री। एंड अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है देन उसका डिटेल्स में पता होना चाहिए अबाउट ऑल द वर्क्स एंड एवरीथिंग, एंड अबाउट योर क्लाइंट एंड ऑल द ऑपरेशन ऑफ योर कंपनी। सो आई होप आपको एक ब्रॉड आइडिया हो गया होगा कि MBA इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। एंड आई हैव अटैच्ड द लिंक ऑफ ऑल माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस वीडियो, सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। And also if you have any more doubt, you can write down into the comment section, or you can reach out to me over LinkedIn or Instagram. And if you find that this video is helpful for you, then please consider for subscribing the channel. Also like to कर ही दो at least. So thanks for watching guys, bye bye, take care and all the best for your interview.